Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a special video of the Kurukshetra compilation and I'll be discussing Kurukshetra for the month of December. As you know, Kurukshetra is one of the important journal when it's come to civil services mains examination as well as for the essay paper. So we'll be covering in depth all the contents that were there in this month, and basically would be more focusing on the aspects of the mains examination so that you can cover it up in general studies paper 3 and general studies paper 2. So without any further ado, let's get started with the topics. The first topic is towards Sarve Shantu Nirmaya, that is India e-health revolution. And talking about this topic, we already had a discussion of this topic in our daily news analysis also. But if this things has been reported in Kurukshetra, I'll be telling some more detail about this so that you can write this in mains examination. So let's get into the detail of this. So e-health is use of technology to deliver health sector solutions, interventions, services that ride the digital platform. तो जिस तरह से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई है हेल्थ सेक्टर में, ई हेल्थ एक नई इनिशिएटिव लेकर के आई है सरकार, जहां पे हर तरह के सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, दिस इज NDHM. इस पे आपको डायरेक्ट सवाल भी पूछे जा सकते हैं एंड दिस कैन बी अगेन रेलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल. क्या है NDHM? This is a mission and this is an holistic voluntary healthcare program which will integrate doctors, hospital, pharmacists, insurance companies to make our digital infrastructures, right? तो digital infrastructure तैयार करने की बात की गई है with integration of doctors, hospital, pharmacists and insurance companies. So this can be again very relevant. Now talking about its announcement, ये 2020 recently इसको अनाउंस किया गया है. और अगर बात करें नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट की, सो दिस वाज बीइंग प्रिपेयर्ड आफ्टर अ होलिस्टिक सर्वे दैट वाज अ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजीज. इस तरह की और प्रैक्टिसेस फॉरेन कंट्रीज में की गई हैं, उसी को अडॉप्ट करते हुए इंडिया ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अडॉप्ट किया सो दैट देयर कुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ डॉक्टर, हॉस्पिटल, फार्मासिस्ट एंड इंश्योरेंस कंपनीज. Now coming to the other part of this, that is अगर इस स्कीम की बात करें तो हेल्थ ID प्रोवाइड की जाएगी दैट विल गिव टू एवरी इंडियन. जिस तरह से आधार कार्ड है उस तरह से हेल्थ ID कार्ड प्रोवाइड की जाएगी सारे इंडियन को. एंड दिस अकाउंट विल कंटेन द डिटेल ऑफ every test, every disease, the doctor visit and the medicine taken and the diagnostics. किसी भी इंडिविजुअल ने अगर किसी भी समय उसने डॉक्टर के एक्सेस किया हो, डॉक्टर को कंसल्ट किया हो, कोई बीमारी हो, कोई ऐसी टेस्ट अगर उन्होंने करवाई है, तो सारा डेटाबेस उनके हेल्थ ID, यूनिक ID जो हेल्थ ID के नंबर होंगे, उनसे डेटा को फेच किया जाएगा. एक तरह से अल्मर्गेशन होगी सारे रिपोर्ट्स और डॉक्टर के कंसल्टेशंस की. नाउ दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी यूजफुल, जहाँ पे बहुत इजी होंगे डॉक्टर्स के लिए, ताकि वो पेशेंट्स के जो भी रिपोर्ट्स हैं या जितने विजिट्स हैं उनको एक बार में एक्सेस कर सके, राइट, इफ दे आर विजिटिंग टू एनी न्यू डॉक्टर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वेसाज होगी. सो फर्स्ट वुड बी टू एस्टैब्लिश द स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम. सारी चीज़ों को डिजिटल मोड में रखने की एक तरह से जो डेटा स्टोरेज है, या फिर ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो भी इंटीग्रेशंस होंगी मेडिकल रिपोर्ट्स की या फिर डॉक्टर कंसल्टेशंस की, वो एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड होगी. नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल एंड रीजनल रजिस्टर्स. Third would be to enforce and adopt the open standard. The fourth is to create a system of personal health records, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया. Fifth would be to promote the development of enterprises, health class and application system and to ensure the national portability. Right? It is very important. कई बार होता है कि आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं and you do not have the sufficient document or you have missed a document, तो इसको पैन इंडिया कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. And to promote the use of clinical decision support system, right? So these are some of the major benefits of the National Digital Health Card or e-health card. Now other initiatives taken by the government, कुछ अगर और initiative की बात करें तो सरकार ने e-hospital की एक initiative को start किया है. This is basically an hospital management system. It will work as an ICT solution, जहाँ पे hospital को specifically ये चीज़ें बताई जाएगी ताकि government hospitals हो, because private hospital already has an integration with the internet and other digital platform. So what government is trying कि जो जितने भी government hospitals हैं
उनको इंटीग्रेट किया जाए ई हॉस्पिटल के मॉड्यूल पे. Now this will provide services to citizen after taking an online registration and appointment. अभी जैसे आप बात करेंगे अगर एम्स जो है इंडिया में, खास करके एम्स दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे एम्स और खुल गए हैं, तो सारे एम्स में आप ओपीडी पे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द ई हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स. दे आर एक्सपैंडिंग इन अदर सिटीज एज वेल, बट जहाँ पे अभी अगर बात करें टीयर 2 सिटीज़ की, तो वहाँ पे बहुत हद तक इस तरह के ऑप्शंस नहीं है कि जहाँ पे आप पेमेंट कर सके, ऑनलाइन डायग्नोस्टिक्स देख सके, या फिर जो इंक्वायरीज है वो अवेलेबल नहीं होती है विथ रिगार्ड्स टू द ब्लड बैंक ऑल्सो, राइट. सो दिस इज द इनिशिएटिव. ई हेल्थ एक ऐसी इनिशिएटिव है जो इन सारे चीज़ों को एलमेगेट करेगी और पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको दुरुस्त करेगी ताकि वो भी इस तरह के ऑप्शंस को अवेल कर सके. Now coming to other initiative, that is मेरा अस्पताल. ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे इट विल कैप्चर द पेशेंट्स फीडबैक फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड बाय द हॉस्पिटल थ्रू द यूजर फ्रेंडली मल्टीपल चैनल्स, राइट. सो एक फीडबैक ग्रीवांसेस मैकेनिज्म के तौर पे इस इनिशिएटिव को लॉन्च की गई है. दिस विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो फॉर मल्टी स्टेक होल्डर्स, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गए, जितने रेगुलेटर्स हैं या जो सिटीजन हैं, उनके लिए एक सिंगल विंडो होगी वेयर दे कैन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ड्रग्स. सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जो सुगम इनिशिएटिव है, राइट. सो उसके साथ ये चैनलाइज किया जाएगा और एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनाई जाएगी ताकि लोगों को अपने ग्रीवांसेस एड्रेस करने का मौका मिल सके. नाउ देयर आर सम मोबाइल एप्लीकेशन एज वेल व्हिच वुड बी ट्रैकिंग द पार्ट ऑफ इट. तो अगर वैक्सीन ट्रैकिंग फॉर इंद्रधनुष, दिस इज एन इनिशिएटिव ऑलरेडी बीइंग टेकन प्लेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंडिया फाइट्स डेंगू, ये भी एक इनिशिएटिव मोबाइल एप्लीकेशंस के तौर पे इसको भी ली गई है. Now NHP, this is Swasth Bharat. This was again the initiative and the mobile application. NHP Directory Services mobile app, not more tension, no more tension mobile app, and Pradhan Mantri Suraksha Matrudha Abhiyan. This is PMSMY mobile app. So these are some of the mobile application that Government of India has launched to boost the overall हेल्थ केयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स. अगर बात करिए सारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स ही है और जो एक्सेस है पब्लिक के, जो सिटीजन के लिए, वो आसान की जा सके, राइट. नाउ किलकारी इज अनदर इनिशिएटिव. दिस डिलीवर्स फ्री वीकली टाइम अप्रोप्रिएट टू 72 ऑडियो मैसेजेस अबाउट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड केयर और फैमिलीज के जो मोबाइल फोन्स में ये सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी उनको. नाउ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज नॉन एज HIS. ये क्या है? ये इम्प्लीमेंट की जाएगी हॉस्पिटल में फॉर ऑटोमेशंस ऑफ हॉस्पिटल प्रोसेस टू अचीव द बेटर एफिशिएंसी. डिलीवरी सिस्टम को जो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है या जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है CHC लेवल पे, खास करके सिटीज़ के लेवल पे या फिर जो रूरल लेवल पे, उन पे दुरुस्त करने के लिए हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी लाया गया है. Now, eSanjeevani, this is again one of the important and significant initiative by the government of India. So it would provide the health services and resolve the problem in 3 main way, right? So now the non-availability of qualified and efficient doctor in the rural area, खास करके रूरल एरिया में डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है. सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये eSanjeevani जो होगी वो एक बहुत हद तक मदद करेगी रूरल एरिया में. Now, high burden of healthcare facilities due to non-availability of sufficient services at the primary level. As you know, अगर बात करें पूरे हायरार्की की हेल्थ केयर सिस्टम्स की, तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप बात करेंगे, they do not have good services, right? And at the topmost level, we have all the services in the urban area. So, to ensure कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे भी उनको बेनिफिट मिले, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी. And the lack of health record creation at the primary and secondary level can interplay of this record. तो eSanjeevani अपने आप में काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. Now e-Rahat Kosh has been launched, which is a comprehensive, efficient and total quality management approach, जहाँ पे ऑनलाइन तरीके से एक ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट की गई है that would roll out with a licensed blood bank in the public and private healthcare facility in state and union territories, right? तो ब्लड बैंक की अगर बात करें, इमरजेंसी केसेस में ब्लड बैंक में भी ब्लैक मार्केटिंग देखी गई है. तो ई-राहत कोष में कंप्रिहेंसिव डेटा होगी, ट्रांसपेरेंसी के तरीके से लोगों को जिनको ज़रूरत है उन्हीं लोगों को सिर्फ ब्लड प्रोवाइड की जाएगी थ्रू द ब्लड बैंक्स.
Now, EVN, this is in latest news. We already had discussed in our daily news analysis. इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क की अगर बात करें तो ये एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की गई है जहाँ पे इम्यूनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक सप्लाई चेन बनाने के लिए इंडिया में अंडर नेशनल हेल्थ मिशन EVN को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और जो पूरा एम है इसका इज टू प्रोवाइड द रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द वैक्सीन स्टॉक्स, वैक्सीन की कितनी स्टॉक्स है, एक डैशबोर्ड बनाई जाएगी। इन पर्टिकुलर डैशबोर्ड द इंटायर इंफॉर्मेशन वुड बी देयर, स्टोरेज टेम्परेचर्स क्या है, क्लाउड चेन के जो पॉइंट्स हैं इन कंट्री दैट वुड बी देयर, लॉजिस्टिक पार्टनर्स एंड द अवेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन वुड बी अवेलेबल इन द EVAN, राइट। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म with the integration of all data regarding to the vaccine availabilities and its entire process of vaccinations. Now the second topic is public-private partnership for digitalizing the rural India. This is again a very significant topic. This will help you in general studies paper 2 and paper 3. Now globally अगर बात करें तो 70% लोग ऐसे हैं they have the access to mobile phone और 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सर्विसेज हैं, राइट। बट जो लोग छूटे हुए हैं या फिर ऐसे लोग जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएट कर रही है रूरल इंडिया में, ताकि जो बचे हुए 60% लोग हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए और जो बचे हुए 30% लोग हैं अबाउट मोबाइल फोन अवेलेबिलिटी दे कुड ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड, राइट। अब बात करें अगर मार्केट फोरकास्ट की तो डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजीज वो ट्रांसफॉर एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर, राइट। खास करके अगर रूरल इंडिया में बात करें तो सरकार की ये कोशिश है कि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी या जो स्मार्टफोन है वो उनके एग्रीकल्चर में और जो ओवरऑल फूड सेक्टर है उसमें कंट्रीब्यूट करे एंड इट कैन कंट्रीब्यूट फॉर द कमिंग नेक्स्ट डिकेड। तो गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। आई विल टेल यू ऑल द इनिशिएटिव्स दैट वर देयर इन द न्यूज़ इटसेल्फ। तो अगर आप मेंस में लिखेंगे या कोई प्रीलिम्स में सवाल आए सो दैट यू कैन ईजिली कवर इट अप। सो द फर्स्ट इज किसान सुविधा। ये एक मोबाइल एप्लीकेशंस है जो कि डेवलप की गई थी फार्मर के लिए फॉर इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, और जो ऐप की इन्फॉर्मेशंस है वो बहुत सारी चीज़ों की डिटेल बताती है लाइक वेदर, मार्केट प्राइस, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर मशीनरीज, प्लांट्स की प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए, ये सारी की जो जानकारी है वो किसान सुविधा मोबाइल ऐप पे दी जाती है। नाउ द फार्मर पोर्टल वाज आल्सो बीइंग डेवलप्ड। तो ये एनविसाज करती है कि किस तरह से जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस है रिगार्डिंग द फार्मिंग कम्युनिटी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनको सप्लीमेंट किया जाए और वो अपने ओवरऑल जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में उनको कैसे इस तरह से मदद मिल सकती है। एम किसान इज अगेन एन SMS पोर्टल जो कि कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था विथ एन क्वांटम लीप टू द फार्मर इन द जोग्राफिकल एरियाज, जहाँ पे टाइमली मैनर पे उनको जो भी एग्रीकल्चर अपडेट है जो कि उनके लिए उनके लाइवलीहुड को या फिर उनके इनकम को बढ़ाने में मदद कर सकती है, उस तरह के मैसेजेस एम किसान के थ्रू उनको दिया जाता है। नाउ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सुरक्षा अभियान, दिस इज PMG दिशा। तो ये जो स्कीम है वो 6 करोड़ रूरल इंडिया लोगों को दी जाएगी और इसका पूरा एम है टू मेक पीपल डिजिटली लिटरेट। और जो अगर बात करें जिस तरह से डिजिटल डिवाइड है इंडिया में रूरल और अर्बन एरिया में, उसको कम करने के लिए जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है लाइक ST और SCs, माइनॉरिटीज़, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, वुमेन और डिफरेंटली एबल पीपल हैं, उन सारे लोगों के लिए इस तरह की इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेकर के आई है। नाउ द प्रधानमंत्री जन धन योजना, दिस वाज अ नेशनल मिशन जहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्लूड करने के लिए ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एंड दिस इज़ लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री। तो ये जो इनिशिएटिव थी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जितने भी अकाउंट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए, जो DBT के जितने भी स्कीम्स है, बिकॉज ऑल द बेनिफिशरीज of the government schemes are directly the money is being directly transferred to their bank account, and the only option that is left with the government is to transfer the account through the DBT mode. So that is the reason that the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has become very successful in the country. Now crop insurance mobile app, यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस के लिए मोबाइल ऐप का यूज़ किया गया टू कैलकुलेट द इंश्योरेंस प्रीमियम एंड नोटिफाइड द क्रॉप बेस्ड इन द एरिया, कितने लोन अमाउंट है या लोन की जो फार्मर की जो लोनी फार्मर्स हैं उन लोगों को इन केस अगर अपने फार्म्स की इंश्योरेंस करवानी है तो उनके क्या क्या चार्जेस होंगे। ई पंचायत इज एन गवर्नेंस इनिशिएटिव फॉर द रूरल इंडिया प्रोवाइडिंग एन comprehensive सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ऑन अटेम्प्टिंग द ऑटोमेशन ऑफ द ग्राम पंचायत फंक्शंस।
और उसके अलावा ई-नाम, ई-नाम इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल इनिशिएटिव, जहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाई गई थी, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल थी विद द एग्जिस्टिंग, और एपीएमसी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, मंडीज को क्रिएट किया गया था टू मेक इट यूनिफाइड मार्केट फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। तो अभी के जो रिसेंट फार्म बिल्स आए हैं उन पे इस बात को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा विरोध है, एंड ऑफ द फार्मर आर प्रोटेस्टिंग इन लाइट ऑफ दिस ओनली। So let's see what is the concrete conclusion that would be coming from the government, because we still do not have the clarity about the APMC or e-NAM. Now, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये भी एक अलग फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, जहाँ पे कंटिन्यूस पावर सप्लाई देने की बात की गई थी फॉर एंटायर रूरल इंडिया। नाउ गर्व ग्रामीण विद्युत मोबाइल ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो रियल टाइम इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस को बताएगी, एंड इट विल ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड विद द गवर्नमेंट स्कीम एंड इलेक्ट्रिफिकेशन डेटा। फिर पीपीपी मोड पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे फिनेंशियल इनिशिएटिव्स के तौर पे जो नोटेबल आधार कार्ड हैं या फिर जो यूनिक बायोमेट्रिक है, जन धन है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, दैट वेर ऑल्सो बीइंग टेकन लाइक बेनिफिट ऑफ पेमेंट एंड भीम वाज देयर विद द हेल्प ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये ट्रिपल पी मॉडल पे काम किया गया। इंडिया में अगर बात करें, पेटीएम के साथ भी बहुत हद तक कोलैबोरेशंस की गई है। बाकी और ऐसे यूपीआई भीम के जो एप्लीकेशंस हैं, गवर्नमेंट उसको भी प्रमोट कर रही है, चाहे वो पेमेंट बैंक्स हो पोस्टल सर्विसेज के या दूसरे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो। नाउ सम बेसिक स्टेप्स दैट नीड टू बी देयर इन द डायरेक्शन दैट इंक्लूड, क्या क्या ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं, इज टू फैसिलिटेट द डिजिटलाइजेशन ऑफ रूरल इनकम्स, मेक इट पॉसिबल टू कन्वर्ट द डिजिटल इनकम इनटू कैश, किस तरह से जो डिजिटल इनकम है उनको कैश में तब्दील किया जा सके, बिकॉज इन रूरल इंडिया कैश इज समथिंग विच इज more influential and more dominated. Now, to focus on the issues related to safeguarding digital payments and digital identities, और जो financial literacy है, capacity training है, उसको augment करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इस तरह की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। Now, realizing digital India, how the digital India can be more or less promoted in the rural India, so that the urban and rural prosperity which is there in the country should be going parallel. तो डिजिटल इंडिया की अगर बात करें तो एक प्रोग्राम है, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जहाँ का उसका पूरा विजन है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट ने नेशनल गवर्नेंस प्लान 2005 में इन्वेस्ट किया था, जहाँ पे पूरी कोशिश थी टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू द मासेस थ्रू द डिजिटल मोड, राइट। ई गवर्नेंस इस टाइम से प्रमोट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम टुक एन ई स्टेप्स टुवर्ड्स एस्पायरिंग प्रोवाइडिंग द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के, उनके जुरिस्डिक्शन को सिंगल विंडो नेटवर्क फ्रेमवर्क जो है उसके साथ बनाने की कोशिश की गई है। नाउ क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। द फर्स्ट इज द ब्रॉडबैंड हाईवे। This has three pillars, इसके तीन important components हैं। First is broadband for rural India, broadband for the urban India, and national informatic infrastructure. This is also known as NII, right? So अगर बात करें broadband की, तो urban project में ministry aims to utilize the virtual network that will operate delivery and communication infrastructures. Now अगर बात करें national information infrastructure की, तो यहाँ पे पूरी जो नेटवर्क थी उसको इंटीग्रेट करने के लिए जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे प्रमोट की जाए इंडिया में, दैट वाज द टास्क विच प्रोवाइडेड अंडर द नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ द सेकंड इज यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। एज यू नो, until and unless we have data or the internet connectivity, the power cannot be there to the people. So rapidly growing of smartphone penetration in India has increased, and India is a country in the world which has largest smartphone penetration, right? तो declining data rate, जिस तरह से जियो की अगर बात कर ले या और भी ऐसे बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, वाईफाई की अगर बात करें अर्बन इंडिया में या रूरल इंडिया में, मोबाइल डेटा पे ही ज़्यादातर लोग चीज़ें को यूज़ करते हैं। सो अफोर्डेबल प्राइजेस ऑफ द डेटा हैज़ मेक इंडिया टेकिंग अ लीप इन टर्म्स ऑफ द यूजेस। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम की अगर बात करें, so public internet access program focused mainly on the two components, that is CSC and transforming the post offices. तो पोस्ट ऑफिसेस को भी बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विसेज, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसिस्टेंटली फोकस रखा कि गवर्नेंस को किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ और अच्छा किया जाए, दुरुस्त किया जाए।
and national e-governance, which I have told you started in 2005 for ensuring the service delivery. Now इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे बैकबोन बनाई गई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को, ताकि जिस तरह से जो ज़रूरत बढ़ रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट. And also in all the government department and in the rural India, what government has trying कि हर डेटाबेस को इंटीग्रेट किया गया, क्योंकि जो भी डेटा है डिजिटली, जो डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू इन द पॉलिसी फॉर्मेशन, राइट. उसको पॉलिसी फॉर्मेशन में भी गवर्नमेंट आगे यूज़ कर सकती है. सो दिस थिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्टोरिंग द डेटास. नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस, सबसे बड़ी चैलेंज है टेक्निकल चैलेंज, बिकॉज द पीपल, द इंटरफेस, जिस तरह से चीज़ें हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करना, डिजिटल इंडिया की जो पूरी कोर एसेंस है उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई स्टेट्स में. और इकोनॉमिक चैलेंजेस की अगर बात करें, सो बजट इज अगेन, बजट आउटले हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के साथ बजट की जो टोटल आउटले थी वो भी काफ़ी कम थी, जिस वजह से जो आउटरीच होनी चाहिए थी, जो कवरेज होनी चाहिए, जो लेंथ और ब्रेथ कवर होनी चाहिए थी पूरी रूरल और अर्बन इंडिया में, वो पूरी हद तक नहीं हो पाई. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस दैट गवर्नमेंट हैज़ टू लुक अपॉन इन द अपकमिंग बजट. नाउ प्रोग्रेस इन द रूरल ई गवर्नेंस, हाउ रूरल ई गवर्नेंस कैन बी प्रमोटेड, एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रूरल इंडिया, ई गवर्नेंस हैज़ हेल्प्ड अ लॉट, राइट. नाउ ई गवर्नेंस की अगर बात करें, एक मैकेनिज्म है दैट वुड प्रोवाइड फॉर मैनेजिंग सर्विसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. एक स्मार्ट तरीका रखा गया. द स्मार्ट स्टैंड फॉर सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट. आप में से कई लोगों ने, अगर इफ पीपल हैव बीन नोन टू द रूरल इंडिया, अगर आप कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाएं या फिर कोई भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाएं, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड द करप्शन दैट इज बीइंग प्रिवेल्ड एट द ब्लॉक लेवल. सो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि आप टाइम बाउंड मैनर पर सर्टिफिकेट को अवेल कर पाए. बट इस तरह की जब सर्विसेज आई हैं इंडिया में, तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई. यू जस्ट नीड टू गो टू द पोर्टल एंड यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ. नाउ इस इनिशिएटिव के लिए, स्मार्ट इनिशिएटिव के लिए, वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया था ई गवर्नेंस को, कि ई गवर्नेंस रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज टू इन्फॉर्म टेक्नोलॉजीज दैट हैव बीन एबिलिटी टू रिलेट सिटीजन एंड अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. सो दिस वाज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन. Now talking about the digital India and e-governance, अगर इंडियन परस्पेक्टिव से देखें तो ई गवर्नेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने में. इसके कुछ 9 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं. इफ़ यू वांट आई कैन टेल यू दैट पिलर्स ऑल्सो, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट प्रोसेसेस एंड री इंजीनियरिंग. Now, talking about the principle of reforming government, that would include these 5. The first is form simplification and field reductions. ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड ट्रैकिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी जिस चीज़ की भी आपको सर्टिफिकेट बनानी है, आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएं, वहाँ की गवर्नमेंट के साइट पे जो भी नोडल मिनिस्ट्री, जो भी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं. ऑनलाइन डिपॉजिटर्स, ऑनलाइन पेमेंट इज ऑल्सो देयर, सो दैट you do not have to pay any commissions, and integration of services and platform is again very important. And information in the electronic form, everything has been made available. जितने भी फॉर्म्स हैं आप डिजिटली PDF प्रिंट कर ले सकते हैं उनकी, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, दैट वुड बी देयर in the official portal itself. Most of the states, the southern states have done this. टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी अभी भी इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छी नहीं है, बट दे वुड बी डूइंग इट वेरी सून एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, राइट. नाउ ई गवर्नेंस की अगर बात करें तो ई पंचायत प्रोजेक्ट्स, दिस इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट, MMP के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे 25 ऑलमोस्ट 2,50,000 पंचायत इंस्टीट्यूशंस जो PRIs हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है गवर्नेंस सर्विसेज के लिए, ताकि इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सके NIC के द्वारा. नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है, सेंटर्स जो है, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ एंटायर डिजिटलाइजेशन इन इंडिया. और भूमि की अगर बात करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था भूमि, जो कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के लिए की गई थी. तो अगर ऐसे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी कोई स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो इसको और भी दूसरे स्टेट्स पैन इंडिया में एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ेगी. नाउ ई चौपाल इज एन प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट जो कि ITC लिमिटेड के द्वारा लॉन्च की गई, एंड दिस रिक्वायर फार्मर इंक्लूडिंग सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द बायर्स, रूलिंग आउट ऑफ द रोल ऑफ द मिडलमैन इन द प्रोसेसेस, राइट. सो ई चौपाल वाज द इनिशिएटिव. इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन की कौन सी कंपनी है जिसने इसकी इनिशिएटिव ली है, दैट इज ITC लिमिटेड. Now, Gyan Doot is again a project by the Madhya Pradesh government,
और ज्ञान दूत की अगर बात करें तो जो सूचनालय है दैट वुड बी सेटअप इन द धार डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। तो जितने भी स्टेट्स के स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हैं यू कैन राइट दैट इन द मेंस एग्जामिनेशन। इफ यू आर अपियरिंग फॉर द स्टेट पीसीएस आल्सो यू कैन कोट दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव दैट इस स्टेट्स ने इस तरह के इनिशिएटिव इस सेक्टर में लिए हुए हैं, राइट। Now coming to the other topic, that is farming 2.0. This is digitalization of agri value chain, how the technology and the digitalization has helped the overall agriculture value chain. Now digital technology की अगर बात करें तो more important recent innovation in terms of all actors like agri food chain has helped a lot. Or digitalization of agriculture is widely accepted as the next agriculture revolution with potential to change the way of food production and the overall country. जो consumptions हैं उनमें या फिर जो productions हैं उनमें changes आई जा सकती है। Now agriculture में कुछ important चीज़ों को include की गई है technology advancement के बाद। These include drones, satellite, sensors and robots that have been potentially in revolutionizing the farmer as well in the large scale. तो ये सारी चीज़ें सैटेलाइट सेंसर्स इंडिया में अर्बन एरियाज पे या लेबोरेटरी बेस पे यूज़ हो रहे हैं। अभी भी दिस इज़ नॉट वेरी इजी कि रूरल फार्मर्स ये सारे टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर पाएँ, बट ग्लोबली दीज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड। एंड टॉकिंग अबाउट द डिजिटल एग्रीकल्चर, दिस कैन हेल्प फार्मर to have more precise inputs about their weather forecast, किस तरह से weather होगी उसकी alerts already farmers को मिलती रहती हैं, and sensor scanning about the soil quality and the humus level that can be coming with all the technology upgradations. Now talking about the leveraging social media in agri value chain, तो social networking के कुछ important initiatives अगर बात करें social media में like Facebook है, Twitter है, जिसके पास अपनी बहुत ओपन वाइड रेंज है जो कि कनेक्ट करती है फार्मर से इन टर्म्स ऑफ रिटेलर्स एंड द कंज्यूमर्स। और फार्मर की जो नेटवर्क है दैट इज हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क, दिस इज नोन एज HFN. दे यूजेस द मोबाइल एप्लीकेशंस टू प्रोवाइड द vital support and advice to the crops and agriculture practices. So social media has also helped farmer a lot in terms of boosting their overall income and their livelihood. तो अगर बात करें हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क की, तो मोबाइल एप्लीकेशन इज़ यूजफुल टू गेट फार्म इंफॉर्मेशन, एडवाइजरी, जो मंडी की प्राइस है इन इंडिया एंड इंपॉर्टेंट मंडीज एंड फार्म प्रोड्यूस डेटाज एंड डिटेल्स आर प्रोवाइडेड थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशंस। ना रिसेंट इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोल आउट किया है बहुत सारे ऐसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स को जो कि फार्मिंग कम्युनिटी के लिए मददगार साबित हो सकती है। दिस वुड बी डूइंग द ईज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड डिजिटल इनिशिएटिव्स बाय एक्सपोर्ट इंस्पेक्शंस काउंसिल, जो EIC है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ ले, दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन। Now government has launched mobile applications मेघदूत। मेघदूत के बारे में अपने प्रीलिम्स में मेरे डेली न्यूज़ एनालिसिस में भी आपने सुना होगा। इफ यू हैव नॉट यू कैन चेक दैट वीडियो। Now this will help by providing the forecast relating to temperature, जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड, डायरेक्शन एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक, दैट वुड बी देयर इन द मेघदूत एप्लीकेशंस ऐप। Now other topic that is e-learning, access and scope of digital education, because after COVID-19 digital education is something that has taken another leap and government is trying to ensure that digital education should be continuing throughout the year so that there cannot be any problem and hassle-free education can be provided to the student both for the secondary and senior secondary level. Now technology, अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो दिस इज फॉर द मार्च गोइंग ग्लोब नॉलेज, डिजिटल सुपर पावर बनने जा रही है इंडिया। देयर इज यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, ICT जिसको बोलते हैं, दैट हैज़ अ डाइवर्स एस्पेक्ट इन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्रेसिव एजुकेशंस, राइट। एज यू सी अभी के टाइम में कोविड-19 के टाइम में भी बहुत सारे जूनियर क्लासेस के भी जो बच्चे थे, खास करके KGs प्राइमरी के बच्चे भी थे, उनको भी ऑनलाइन मोड के थ्रू डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई। उनकी क्लासेस रूरल इंडिया में भी प्रमोट की गई है एंड एट द सेम टाइम द इंटीग्रेशन एंड जो डिजिटल डिवाइड थी बिटवीन द रूरल इंडिया एंड द अर्बन इंडिया हैज़ अगेन बीन लेसन बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। Now डिजिटल एजुकेशन की अगर बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग इज अगेन वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट, जहाँ पे एक्सेसिबल कराई गई सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज को, एंड दिस इज द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट अवेलेबल टू द कंप्यूटर और द मोबाइल डिवाइसेस।
नाउ वेब बेस्ड लर्निंग की अगर बात करें तो वेब बेस्ड लर्निंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस एंड लर्निंग यूजिंग द वेब ब्राउजर्स. बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रूरल और अर्बन इंडिया में, दैट इज द स्पीड ऑफ इंटरनेट. स्पीड ऑफ इंटरनेट इज अ बिग चैलेंज बिकॉज जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, अगर आप वाईफाई पे यूज़ कर रहे हैं यू गेट अ गुड स्पीड. इफ यू यूजिंग अ मोबाइल डेटा तो वहाँ पे स्पीड काफ़ी कम हो जाती है. Now, e-learning, this is again a process which I've told you, digital technology learning technique process को पूरा involve किया जाता है so that there can be a connections between the teachers and the student. Digital learning is another mode जहाँ पे process of learning from the distance from the participants and physically separated students. वर्चुअल लर्निंग में क्या होती है कि क्लासरूम क्रिएट की जाती है फॉर द रूरल एंड रिमोट कम्युनिकेशन इन द कंट्री एंड द नीड ऑफ द आवर इज समथिंग दैट शुड बी प्रमोटिंग द वर्चुअल एजुकेशन और द वर्चुअल क्लासरूम इन द एंटायर कंट्री. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने दिशा नाम की एक इनिशिएटिव है, दीक्षा, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग. 2017 में लॉन्च की गई थी. इसको एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाई गई फॉर स्कूल एजुकेशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ रिमोट लर्निंग इन द रूरल एरिया. उसके बाद ई पाठशाला, जहाँ पे डिजिटल इंडिया कैंपेन के थ्रू ई पाठशाला को इंटीग्रेट किया है. जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एनसीईआरटी के बीच में. एनसीईआरटी की जो बुक्स आप पढ़ते हैं, रेफर करते हैं, उनके बीच में, ताकि जितने भी ई रिसोर्सेज हैं वो एक जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल सके. अभी भी आप अगर एनसीईआरटी की वेबसाइट्स खोलेंगे तो आपको ई पाठशाला के एक अलग से कॉलम वेब लिंक मिल जाएगी. नाउ स्वयं प्रभा चैनल, दिस वाज द एजुकेशनल चैनल लाइक डीडी न्यूज़ और दूरदर्शन. तो यहाँ पे डीटीएच के थ्रू लोगों को हर टॉपिक में जो बेसिकली जो जानकारी चाहिए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, उनके क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते थे. नाउ NROER, that is National Repository Education Resources Open. This is a collaborative platform of sharing the open educational resources like IGNU है, NIOS है. इस तरह के जो open resources है उसकी accessibility बढ़ाने के लिए ये initiative ली गई है. Now the other is ICT scheme for under Shagma Shiksha. This is a scheme for Shiksha that is integrated for the computer aided learning. जो सर्व शिक्षा अभियान है, SSA है, ऑलरेडी ये काफ़ी पहले से चल रही है इंडिया में. इसी को इंटीग्रेट किया गया है सो दैट क्रिएटिंग अ पार्टिसिपेटिव इनोवेशंस, जो डिजिटलाइजेशन है उसके एक्सेस को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूविंग इट्स एक्सेस, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी इन द स्कूल एजुकेशंस. नाउ शाला दर्पण, दिस इज एन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल केवी, जितने भी केंद्र विद्यालय हैं स्कूल में, खास करके रूरल इंडिया पे, उस पर फोकस करने के लिए शाला दर्पण. फिर शाला सिद्धि इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर स्कूल एंड इवैल्यूएशन नोन एज शाला सिद्धि. फिर उसके बाद ई ग्रंथालय. ई ग्रंथालय एक इंटीग्रेशन है नेशनल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, जो कि डेवलप की गई है NIE, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स जो है, और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस. उन्होंने जितने भी लाइब्रेरीज हैं, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है, उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की है ताकि सारे लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी एरिया से, वो इंटरनेट एक्सेस में अगर कनेक्टेड है तो वो जर्नल्स को पढ़ सकते हैं. राइट नाउ प्रिसिशन एग्रीकल्चर और IoT बेस्ड सॉल्यूशंस. देखते हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर क्या होती है. बात करें प्रिसिशन एग्रीकल्चर की तो एक अल्टरनेटिवली इसको प्रिसिशन फार्मिंग भी कहते हैं. एक साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट की प्रोसीजर्स है ये, जो कि इमर्ज की गई थी ग्लोबली 1990s के टाइम में, बट इंडिया में अभी भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है ये. इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो रिमोट सेंसिंग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, GIS इसको कहते हैं, या फिर जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, रोबोटिक्स और एनालिटिक्स के थ्रू यूज़ की जाती है ताकि जो फार्म्स की जो लैंड है या जो ओवरऑल क्रॉप है उसको मैनेज किया जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके. एंड अडॉप्टिंग दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक बिग डेटा, advanced analytical capabilities, robotics, aerial imagining, sophisticated local weather forecast as something that is again been provided under the precision agriculture. Now talking about the benefits, क्या क्या इसके benefits हो सकते हैं. So कुछ multiple benefits है, मैं आपको बता रहा हूँ. If you're writing this as main examination, make sure you include all these points. तो first is adopting an improved set of agriculture productions, जहाँ पे farmer के पास choice होती है. Suitability of land और climate के हिसाब से वो पहले ही उनको पता चल जाएगा कि कौन से क्रॉप वो लगा सकते हैं. Optimizing the input resources like water, fertilizer, plant protecting measures against the pest diseases. So pest control, all the precautionary measures that need to be taken prior any agriculture is being shown, उससे पहले ये सारी चीज़ें करी जा सकती है.
Now, helping the minimal avoid and the wastage of the technological interventions. The second last would be managing water, soil nutrients, and agriculture effectively. And lastly, eliminating the risk of volatility of the crop production systems, right? So these are some of the major benefits of adopting the precision agricultures. नाउ अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इंडिया के लिए ओवरव्यू रिपोर्ट बनाई गई थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2019 में. उन्होंने कुछ चीज़ें कही है कि इंडिया मस्ट इंश्योर द पॉलिसी दैट वुड फोकस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑन. तो ये रिकमेंडेशंस हैं WHO की तरफ से. दिस इंक्लूड पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ देयर कुड बी एन कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट वुड बी वेरी वेलकमिंग. होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के इंडिया में अभी भी बहुत अधिक है. सो गवर्नमेंट नीड टू डेफिनेटली नीड टू फिल दिस गैप. नाउ एग्रीकल्चर एंड रूरल सिस्टम नीड टू बी प्रमोटेड, एंड एट द सेम टाइम रूरल इंडिया में जो भी बॉटल नेक्स हैं, चाहे बजटरी एलोकेशंस हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको पूरी करने की जरूरत है. फिनेंशियल इंक्लूजन मेजर्स नीड टू बी टेकन. Boosting the private investment and export would be very crucial for the farming sector. And strengthening the and education, the public health. Strengthening education and public health, that should be again promoted. So these are some of the important suggestions that has been incorporated in the World Bank's India's Country Overview Report 2019. So अगर prelims में भी आपसे सवाल पूछे जाएं, make sure you know all these points because they can ask you anything from this point. Right? So this was all about the compilation of Kurukshetra for the month of December. And if you're new to our channel, we have our daily topic-wise news analysis where I used to cover the news from the Hindu and the Indian Express. The most relevant news is being presented to you with additional information so that they can help you in prelims and mains examination. So do check it out, our playlist section. You can watch these videos on the daily basis. And if you're watching our channel for the first time, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.